Namaste all of you. As we have already studied about chapter number first of resources, so now let's continue the chapter number 1. Half part was completed and now we will continue the chapter first. We have already studied about what is a resource. Then we have covered about types of resources. First natural resource, human made resource, and then human resources. In previous class we have studied about different types of natural resources. So natural resources is classified into 4 parts. First, according to origin, according to renewability, according to distribution, and according to development. After that, we had also covered about full details of biotic and abiotic resources, renewable and non-renewable resources, then ubiquitous and localized resources. Not only this, we have also studied about what are potential resources and what are actual resources. So now let's continue the chapter. For today's session, our first topic is what is human-made resources. Sometimes natural resources became resources only when their original form has been changed, because it is human who convert any natural product into a resource by his knowledge, invention, creation, by discovering. It is human who make everything possible and turn everything into a resource. For example, deep down under the crust of the earth, iron was present since ages. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. जब प्राकृतिक संसाधन सदा से ही पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के ऊपर सदा से विद्यमान हैं, चाहे वह नदियाँ हों, धातु हों, खनिज हों, किसी भी तरह के हमारे पास में प्राकृतिक संपदाएं हों, लेकिन हम उनको तब तक संसाधन नहीं बना सकते जब तक उसमें मानव का श्रम ना लगा हो. उनको मनुष्य ही क्या करता है, संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. We can also understand by viewing the picture of rubber, which is a natural resource, and this natural resource becomes man-made resource by the efforts of human beings, and it is converted into tires. Rubber from tires and wood from dining table or other type of furniture is an example of man-made. Then we can also use metals and convert them into utensils. Like in this picture you can see the image of spoon. Spoon is a man-made resource and it became a man-made resource from natural resource. Moving further, let's take another example of sand, which is a natural resource, and by this sand we can convert it into clay pots. So copper is a metal and we can use into various statues, wires, and it became a man-made resource. So I hope now you are able to understand about human-made resources. After understanding meaning of natural resource, then what is human-made resource, now let's move further and understand the meaning of human resource. Human resource, that means Manav Sansadhan. We can say that people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. This is why human beings are a special resource. People are human resource. किसी भी देश में दो प्रकार की जनसंख्या होती है. एक देश जिसके पास में एजुकेटेड, हेल्दी, स्किलफुल और बहुत अच्छी मात्रा में जनसंख्या उपलब्ध है, वहाँ पर हम देखेंगे कि उस देश के पास में पूर्णतः क्या है, मानव संसाधन. ऑन द अदर साइड, countries which are in developing phase, there must be so many problems. In that case,
ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो इन अ डेवलपिंग स्टेज। वहाँ की जनसंख्या, विकासशील देशों की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो उन देशों में हमें अशिक्षा, पुअर हेल्थ कंडीशंस और जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्त, या तो जनसंख्या विस्फोट होगा या फिर बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर कम संख्या में पॉपुलेशन होगी। सो ह्यूमन रिसोर्स तभी ह्यूमन रिसोर्स होगा इफ़ वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो और सरप्लस मात्रा में हो, हमारे पास में स्किल्स हों कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। एजुकेशन एंड हेल्थ help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as resource development. There are two types of population. First type of population is a asset for the country, and second type of population became a liability. So it is in our own hand कि हमको किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार का मानव संसाधन बनना है। क्या हमें लायबिलिटी बनना है या फिर हमें अपने देश के लिए एक असेट के रूप में, मानव संसाधन के रूप में हमें बनना है। सो वी मस्ट बी फोकस्ड टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. So we cannot deny the fact that it is transferring of human knowledge and skills makes human into a resource. What is conservation of resources? Why conservation of resources is essential? There is a girl who had a dream last night that all the water on the earth got dried up. What will happen if we are going to waste so much of water or other natural resources, because all the natural resources are limited in quantity and quality. So for the need of future generation, and because resources are limited in nature, so to make better use of the resources we must keep balance and conserve natural resources. Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. जब हम सभी संसाधनों का सतर्कता से उनका उपयोग करें और उनको पुनर्उपयोग करें, उनको रिन्यू करें, रिसाइकल करें, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण. Balancing the need to use resources are also conserve them for the future is called sustainable development. सतह पोषणीय विकास हम उसको कहते हैं कि इस प्रकार की विकास जिसमें हम पर्यावरण का संरक्षण भी करें, संसाधनों का उपयोग भी करें, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, ताकि भावी पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग कर सके, उनका लुत्फ उठा सके और उससे प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो. इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ future generation. So by planning and recycling we can conserve natural resources. So there are many other ways of conserving resources, like each person can contribute by reducing consumption, अपना उपभोग कम करना, recycle करना and reusing thing. Ultimately it makes a difference. We are directly or indirectly dependent upon the nature. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. हमारा भविष्य भी किस बात से लिंक करता है कि हम किस प्रकार से आज के टाइम में प्रकृति का संरक्षण और सभी संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable,
कि हम उतना ही उपयोग करें, रिन्यू कर सकें, प्राकृतिक संसाधनों को हम बार बार क्या कर सकें, रिन्यू कर सकें। ऐसे संसाधनों का हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, जल। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, दैट इज़ फ्लोरा, fauna, or we can say plant kingdom or animal kingdom must be conserved, right? So second is the damage to natural environment system should be minimized. जितना भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कम से कम नुकसान हो, इसीलिए हमें संसाधनों को संरक्षित करना ही चाहिए और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। सो आफ्टर लर्निंग द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज। वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतह पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज utilizing resources so that meeting the requirement of present as well as taking care the needs of future generation। हम अपनी भी ज़रूरतों का ख्याल रख सके और इन्वायरमेंट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी के लिए भी हम अच्छी धरती को छोड़ करके जाएं, अच्छे प्राकृतिक संसाधन उनको हम दे करके जाएं। तो वो किस प्रकार से होगा? बाय प्लानिंग। टू सपोर्ट एंड सस्टेन आवर वर्ल्ड वी नीड टू कीप इट एज हेल्दी एज पॉसिबल बाय प्रोटेक्टिंग एंड सस्टेनिंग वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, इकोसिस्टम, हैबिटेट्स, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स are connected, are interrelated, and they each need each other for their support. After all, animals would not survive without the right habitat, and a habitat would not be same without animals. So we should focus on the path of sustainable development for the betterment of the अर्थ। सतह पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे? इट इज़ अ मेथड बाय विच वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट एंड फुलफिल आवर नीड्स एंड ऑल्सो मेक बेटर प्लैनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमको अपना भी विकास करना है, स्वयं की भी हमें डेवलपमेंट करनी है, साथ ही साथ में हमें इन्वायरमेंट की भी रक्षा करनी है और भावी पीढ़ी के लिए हमें अच्छे से अच्छी सुंदर पृथ्वी को छोड़ करके जाना है, जिसका वो सभी भी लाभ उठा सकें। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन अटेन द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी विल अंडरस्टैंड step by step. First is we should focus to remove the poverty. Say no to poverty. गरीबी को हमें मिटाना चाहिए। Second is zero hunger. There should not be scarcity of food. Third is we must focus on good health and well-being to attain the path of sustainable development. इसीलिए कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। वी शुड फोकस ऑन दी गुड हेल्थ। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। हमको शिक्षा में भी प्रगति करके हम तथा पोषणीय विकास के मार्ग पर चल सकते हैं। एंड एजुकेशन इज अ टूल विच रिमूव्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइव्स। जेंडर इक्वालिटी इज फिफ्थ वन। हमें इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे फोकस करना चाहिए। Sixth is clean water and sanitization. We should recycle water. We should clean the natural bodies like river, lake and ponds. Natural sources water के हमें क्या करने चाहिए? संरक्षित करने चाहिए, उनको सैनिटाइज करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। Seventh is affordable and clean energy. We must use those methods which are environment friendly like solar energy, wind energy, because we can use them again and again and they are free gifts of nature. Eighth is decent work and economic growth. We must focus on decent development. That means हमको विकास तो करना है लेकिन इस प्रकृति का सर्वनाश नहीं करना है। उस शर्त पे हमको विकास करना है कि जिससे ना तो
पेड़ पौधों का नुकसान हो, ना ही वन्य जीव जंतुओं का और प्रकृति के लिए वो क्या हो, एक गिफ्ट हो, एंड हमारी भी साथ के साथ क्या हो, आर्थिक प्रगति। 9th is industry, innovation and infrastructure. We must focus on the industries by following the rules of the government and अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बिल्ड करना है और बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, हमारे समाज में जो भी गैप्स हैं, जो भी गैप हैं रिच और पुअर के, कास्टिज्म के, उन सबको हमको क्या करना है, उन सब विभिन्नताओं को हमको दूर करने का प्रयास करना है। वही सही मायने में क्या होगी, डेवलपमेंट। 11th is sustainable cities. By this we can say that we must focus to build such cities or such infrastructure by which we can promote environment rather than destroying environment. हमको सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। ऐसी हमारी सिटीज़ हों जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों का हम भरपूर मात्रा में उनका क्या कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो। ऐसे ही हमें कम्युनिटीज़ प्रोग्राम भी बिल्ड करने चाहिए। 12th इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हम उतना कंज्यूम करें जितनी हमको ज़रूरत है, बिकॉज ओवर कंजप्शन करने से ना सिर्फ हम ग्रीडी बनेंगे और देयर इज़ नॉट एनफ फॉर द ग्रीडी मैन। सो हमको कंजप्शन तो करना ही है, पर हमको ओवर कंजप्शन नहीं करना है, ज़्यादा उपभोग नहीं करना है। भावी पीढ़ी के लिए हमें चीज़ों को क्या करना है, संरक्षित करना है। एंड बाय प्रोडक्शन मीन्स कि जितना कंजप्शन की ज़रूरत है, जितनी डिमांड है, उतनी ही हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। 13th इज़ क्लाइमेट एक्शन। अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण को हम दूषित ना करें, उसकी संरक्षण के लिए जलवायु से संबंधित हम सभी चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो या फिर लिथोस्फीयर हो। एवरी स्फीयर ऑफ द अर्थ इज़ solely dependent on the biosphere. So for the better biosphere we must focus on the climate action related program. हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे इन तीनों मंडलों पर कोई भी नुकसान पहुँचे, चाहे वो जलमंडल हो, वायुमंडल हो या फिर स्थल मंडल हो। किसी भी प्रकृति के तीनों आयामों को हम उसका नाश ना करें। Then 14th is life below water. I have already told you that कि हम ऐसा नहीं कि हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, डीजल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बॉम्बे हाई से और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दें, प्लास्टिक्स फेंक दें। एक बार हम बीच पे गए और पूरी की पूरी चीज़ों को हम क्या कर दें, तबाह कर दें। इस प्रकार का हम कोई भी कार्य ना करें। 15th इज़ लाइफ ऑन लैंड। हमारे स्थल भाग पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनका भी हम संरक्षण करें। 16th that is peace, justice and strong institution. Very important pillar of sustainable development. By peace means शांति। विकास का सबसे महत्वपूर्ण और अहम बिंदु कि हम डेवलपमेंट तो करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम परमाणु बम बना रहे हैं, एटॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पीस में प्रयोग करें, उसको हम अशांति के लिए उसका दुरुपयोग ना करें। सेकंड इज जस्टिस। न्याय मिले वही विकास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हमने विकास के नाम पे बहुत ऊंची ऊंची सब क्या कहते हैं बिल्डिंग्स और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी अपनी सब बिल्ड कर ली, लेकिन उसका अधिकार हम गरीबों को उससे वंचित कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इनजस्टिस है। हमको ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें पीस भी हो और जस्टिस भी हो, और हमारी इंस्टीट्यूशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग पे चलती हैं वो क्या हो, इतनी स्ट्रांगली बिल्ट हो, हमारे अच्छे रूल्स और रेगुलेशन हो। एंड 17 इज पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स। कि कोई भी लक्ष्य हमने बनाया कि हमें स्वतः पोषणीय विकास करना है और उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशंस को भी काम पे लगाया, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बट वी मस्ट बी अ कैटलिस्ट। हमको खुद से उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, तभी हम स्वतः पोषणीय विकास के मार्ग पर चल पाएंगे। Now these are the 7 methods by which we can transform our world
and attain the path of sustainable development. This chapter is completed. Thank you for watching, and this is my first video. It is my first trial as a teacher. I hope I will overcome my shortcomings, my mistakes. So all the best. Take care. Stay safe. Thank you.